Assalamu alaikum, grade 9. How are you all? Grade 9. वालेकुम अस्सलाम टीचर। Okay. Okay. Today we are going to start exercise 4.9. You have done all parts of 4.8? All of you? Tell me. You done or not? Okay. Let's start. Before starting exercise 4.9, in this exercise, you have to use formula. Acha, you have already done before whole square formula. A plus B whole square or A minus B whole square. You have done these type of formulas, right? So now we will start cubic formula. Okay? Cubic formula. This is called A plus B whole cube. A plus B whole cube. Right? Now, A plus B whole cube will be expand as A cube, right, plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. Copy down it. A plus B whole cube will be expand as A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. It will expand into 4 terms. Okay. And if we have plus sign between two terms, then we have throughout plus sign. राइट अच्छा ये जो फार्मूले हैं ये एक्सपेंड द फॉलोइंग में यूज होंगे राइट एक्सपेंड सिमिलरली इफ वी हैव a माइनस बी चले ये तो हो गया एक्सपेंड लिख लिया साइड में एक्सपेंड द फॉलोइंग ये हमने एक्सपेंड में यूज करेंगे फॉर्मूला अगर हम इसी फॉर्मूले को वी कैन राइट एज और करके लिखे a प्लस बी होल क्यूब कैन बी रिटन एज a क्यूब अच्छा ये बिटवीन ये सेकंड थर्ड और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में से व्हाट थिंग इज कॉमन व्हाट थिंग इज सेम इन सेकंड मिडिल टू टर्म ये जो मिडिल टू टर्म्स हैं व्हाट थिंग इज सेम टेक आउट कॉमन फैक्टर निकाले कॉमन फैक्टर मुकद्दस गिव रिस्पॉन्स व्हाट थिंग इज सेम मुकद्दस फरहान गिव रिस्पॉन्स तहा मुकद्दस okay now
Farhan, give response. See, Yes. on middle two terms, 3 is same in both the terms, so we can take out 3 as a common factor. Also, if we have variable, then we see and different power of the variable. Here a square, here a to the power 1, here b1, and in this term b to the power 2. So we see least power of the variable. बेटा अलीमा, ये अभी बिफोर स्टार्टिंग 4.9 वी आर आई एम एक्सप्लेनिंग द फार्मूला, right, which will be used in this exercise. We did not start 4.9 yet, just explaining the formula which will be used in this exercise. So take common from these two. तो इसमें से हमने कॉमन लेंगे, 3ab is common. Now start. What thing is left? 3 आपने एज ए कॉमन फैक्टर ले लिया है, a to the power 1 ले लिए और b to the power 1. So what thing is left? a, and over there in this term 3 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर है, a भी हमने बाहर ले लिया है एंड b स्क्वायर में से एक b ले लिया बाहर. तो what thing is left? b, and in this copy down b cube as it is. So this formula will be used in find the value. Find the value. So प्लस के आपने जो प्लस का फॉर्मूला है, ये इसकी टू फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म इज एक्सपेंड द फॉर्मूला, एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, उसमें आपने ये फॉर्मूला यूज करना है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला इज फाइंड द वैल्यू. उसमें जब आपका पास क्वेश्चन आए फाइंड द वैल्यू, तो फिर उसमें ये फॉर्मूला प्लस का आप यूज, और होंगे प्लस के ही, तो प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे. राइट, ये तो हो गया प्लस के फॉर्मूले. अब आप आ जाए माइनस के. a, similarly if we have a minus b whole cube, so it will expand as a cube. देखें, terms will remain the same with same power of the variable. a cube minus 3a square b minus plus 3a b square minus b cube. If we have minus between two terms and we have whole cube, then it will expand as you did before. बिल्कुल इसी तरह से है, only difference of sign. माइनस में ये याद रखें, alternate sign comes first. First comes plus, then minus, plus, then minus. Alternate sign are coming, plus, minus, plus, minus. Now similarly इसी को हम in other, ये हो गया आपका expand the formula, expand में करेंगे आप, right. इसी को हम लिख सकते हैं और करके, second form of this formula is a minus b whole cube can be written as a cube minus. अब सिमिलरली अब यहां से हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं. 3ab कॉमन ले लिया, व्हाट लेफ्ट इनसाइड? a माइनस प्लस माइनस b ब्रैकेट क्लोज माइनस b क्यूब. ये है फाइंड द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू में फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट. सो सिर्फ इस टर्म में पॉजिटिव आएगा, बाकी टू आउट माइनस साइन है. फॉर रिमेम्बरिंग आई एम टेलिंग यू. नाउ नेक्स्ट. टीचर. यस बेटा. टीचर यहाँ पे आपने a माइनस बी क्यों आपने लिखा है? देखिए फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया, प्लस वाला. प्लस. यस. हाँ, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकंड. नेक्स्ट माइनस में वही सेम है जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर था और a प्लस बी होल स्क्वायर था. सिमिलरली a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब.
टर्म्स विल रिमेन सेम, बिल्कुल सेम यही टर्म्स आएंगी, ओनली साइन विल बी चेंज। देखें माइनस में पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। इसी की सेट ये उस वक्त फार्मूला यूज करेंगे जब क्वेश्चन में दे आर आस्किंग एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, उस वक्त हम ये फार्मूला यूज करेंगे एक्सपेंड में, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। लेकिन अगर फाइंड द वैल्यू हो तो फाइंड द वैल्यू में सेकंड फॉर्म ऑफ द फार्मूला यूज करेंगे, आइदर दैट इज प्लस और माइनस। अब किस तरह से मैंने कॉमन लिया है, देखें मिडिल टू टर्म में से कॉमन लिया है। What thing is same? Common means you have to see the same number and variable. If we have different power of the variable, then rule is we see the least power of the variable. ठीक है, 3 is common, 3 आपने बाहर ले लिया। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर है और यहाँ a है, a to the power 1 है, तो we see according to the law least power of the variable, a to the power 1 निकाल ली। सिमिलरली ये b1 है, b स्क्वायर है, तो b टू द पावर 1 हमने ऐसा कॉमन फैक्टर निकाला है, ठीक है। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, व्हाट थिंग इज लेफ्ट, 3 आपने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर में से एक a ले लिया और b तो ले लिया आपने, तो व्हाट थिंग इज लेफ्ट a, ठीक है। अब साइन आर गोइंग टू मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, that's how they are multiplying, minus plus minus, right? Now 3 is common, a भी बाहर ले लिया आपने, b स्क्वायर में से एक भी ले लिया, तो what thing is left b, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका a बचा, a minus b ब्रैकेट क्लोज, और माइनस b क्यूब एज इट इज कॉपी डाउन। सो कॉपी डाउन दीज फार्मूलाज, ऊपर फार्मूले की हेडिंग करके और लिख लीजिए आप, कॉपी डाउन इट, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.9, 4.9 पे आएंगे। कॉपी डाउन इट, व्हेन यू कॉपी डाउन इट देन टेल मी, आई एम गिविंग यू 2 or 3 minutes to copy it, quickly copy down, और those who are joining them tell me, बताते जाइएगा कौन कौन न्यू एडिशन हो रहा है। we have 7 students right now. Okay Taha, have you understood? Yes, teacher, yes. Okay, copy down it quickly. Yes, teacher, I have copied down. Okay, Zuhair, you have done it? Zuhair, Farhan? Teacher, no, Okay, no, teacher. I'm going to all learn these formulas. ठीक है, I'm going to erase it. ये आपने क्या लिखा है, ये a माइनस बी, A ये minus ब्रैकेट में ऊपर, इससे ऊपर A minus B cubic formula. Who is entering? Asha is coming, is joining. ओके टीचर, ओके। A minus B whole cube. ये पेज नंबर you can see on पेज नंबर 91. देखिए 90, ये पेज 90 पे भी यही सेम formulas are given. You can see from book also. पेज 90 पे ये फार्मूले given है on page number 90. ये all formulas are given on page number 90. पेज नंबर 90 ये देख लीजिएगा, कंफर्म कर लिया मजीद, ठीक है। ठीक है, teacher, erase it. Okay, Asha, quickly copy down it. Now 4.9 is going to start. Write question number 1. अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगी क्योंकि फार्मूला इज लेंथी एंड बुक स्पेस, वो बोर्ड स्पेस इज आल्सो शॉर्ट। Asha, you copy down it quickly. Now 4.9 is going to start. ये देखें, in question number 1 find the cube of the following. Question number 1, find cube, वो आप खुद ही लिख रहे हो आगे। Find cube of the following. Okay, now see, यहाँ शेड पढ़ना है, देख लीजिएगा फाइंड क्यूब लिखा है। अब पार्ट ए, आई एम कॉपी पार्ट ए, x plus 4, 3x plus 4, 3x plus 4, पार्ट 1 है। सी
now or give response. If you have any problem, so you can ask me. अच्छा, see here. In question they are asking find cube. अब in जो part is given 3x plus 4, इसमें तो क्यूब ही नहीं है, तो होल क्यूब का फार्मूला या स्क्वायर का फार्मूला उसी वक्त अप्लाई होता है जब ऑन द होल एक्सप्रेशन इज कमिंग स्क्वायर और कमिंग क्यूब। तो पहले तो हमें इसको क्यूब डालना है, ठीक है। तो अब आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 3x plus 4 होल, क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चन फाइंड क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब तो है नहीं, तो होल क्यूब कर देंगे, राइट। फाइंड होल क्यूब, और होल क्यूब का फार्मूला जब भी अप्लाई होता है या होल स्क्वायर का व्हेन वी हैव इन द एक्सप्रेशन और इन राउंड ब्रैकेट टू टर्म्स, ठीक है, टू टर्म्स हो आपके पास। अब नाउ आप इसे अज्यूम कर लें, फर्स्ट टर्म को a और सेकंड टर्म को b अज्यूम कर लें, या मैं लिखवा के करूं कि सपोज 3a is equal to 3x और b is equal to 4, ये डायरेक्ट कर लेंगे आप। अब लिखे आप बाय फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा, प्लस का और माइनस का? विच फार्मूला विल बी यूज, आइदर प्लस और माइनस? Taha, tell me which formula will be used, or Farhan? प्लस, प्लस, क्यों? क्योंकि प्लस है जी, because we have sign plus between two terms. अगर माइनस होता तो माइनस का फार्मूला यूज करते हैं, ये तो एक कंफर्म हो गया, प्लस का फार्मूला करना है। अब प्लस के फार्मूले में हमने टू फॉर्म ऑफ फार्मूले लिखवाए थे, कौन सा फार्मूला यूज होगा बताइए, कौन सी फॉर्म होगी, ऊपर वाली फॉर्म होगी या नीचे वाली? मैंने दो फार्मूले लिखवाए थे प्लस के, टू फॉर्म ऑफ फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू दिस और a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो विच फॉर्म ऑफ फार्मूला विल बी यूज, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म? मुकद्दस, ताहा, फरहान, क्विकली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वहां मैंने मेंशन किया हुआ है एक्सपेंड, यानी और क्वेश्चन में भी आपको ये एक्सपेंड करना है। ओपन, एक्सपेंड मींस ओपन, ठीक है, एक्सपेंड द फार्मूला। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फार्मूला लिखेंगे दिस, a प्लस बी होल क्यूब, और लर्न इट, याद कर लें आप। देखिए क्यूब है तो दोनों टर्म्स में तो क्यूब आना है, और जो मिडिल टू टर्म्स है वो इनका प्रोडक्ट होंगी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर पावर 1 है, नेक्स्ट में इसके ऊपर पावर 1 हो जाएगी, इसके ऊपर b के ऊपर स्क्वायर हो जाएगी। फॉर रिमेम्बरिंग आई एम टेलिंग यू b क्यूब, देखिए 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स, इट विल एक्सपेंड इनटू 4 टर्म्स, ठीक है, फार्मूला लिख लिया। अब आप सपोज कर लें, मैं सिर्फ इसी में आपको करा रही हूँ, बाकी आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। सपोज a यानी a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 4। अब जहां जहां a है वहां ये रखेंगे, जहां b है वहां आप 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ यू हैव 3x plus 4 whole cube. Now I am expanding. First term is a cube. तो आपने whole cube करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? Quickly tell. 3x, ठीक है, 3x लिख लिया, because a we are supposing 3x, फर्स्ट टर्म को आपकी ले ले a है और सेकंड टर्म आपकी b है, राइट। प्लस अब आगे बढ़े, 3 इज कांस्टेंट एज इट इज लिख लें, a स्क्वायर b, फर्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर लगाएंगे और सेकंड ब्रैकेट सिंगल होगा। अब इसमें क्या लिखना है, 3x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। नाउ नेक्स्ट थर्ड टर्म
प्लस 3 एज इट इज कॉपी डाउन करें, अगेन मेक 2 ब्रैकेट, यहाँ स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर है। अच्छा यहाँ व्हाट यू विल राइट 3x, a will be replaced by 3x and b will be replaced by 4. now last term होल क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 होल क्यूब। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? उसके बाद कुछ नहीं है आपका, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आंसर आ जाएगा। that is called expand, you are expanding, expand the bracket, ठीक है? have you understood? shall I move further? start the new next step. okay now क्यूब ऑफ 3, ये क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर यू हैव टू बी लर्न। फौरन बताएं क्यूब कैलकुलेटर, डोंट यूज कैलकुलेटर, ये तो आपको लर्न होनी चाहिए फिंगर टिप पर। क्यूब ऑफ 3 27। अभी आपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है, इतना आपने प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस अब इसका स्क्वायर करें, या तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। चले 3 3 9, इसका स्क्वायर किया पूरे ब्रैकेट का 9x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और 4 एज इट इज। सेम यार इनको पहले मल्टीप्लाई करें, 3 9 और स्क्वायर ऑफ 4 16 प्लस क्यूब ऑफ 4 64। नाउ सिंप्लीफाई 3x प्लस 4 होल क्यूब इज 27x क्यूब। अब देखें 3 9 27, 27 4 व्हाट कम्स, करके देखें 24। करें, नहीं आ रहा आपको? 108 इधर आ जाए, 16 9 नंबर को नंबर से कर ले, इससे ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, और 16 9 करें व्हाट कम, 16 9 144, ठीक है, और प्लस 64। दे ऑल आर अनलाइक टर्म, ये क्यूबिक है, स्क्वायर है, एक्स पावर 1 और 64। ये देखें थ्रू आउट एक्स वेरिएबल है और दे आर डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये अरेंज। ये आपका प्रीवियस भी रिकॉल हो रहा है आपका, वो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा था ना, ये क्यूब 2 1 and constant, right? this is your answer। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी है आपकी। have you understood? समझ गए आप लोग? tell me, give response बेटा, have you understood all? okay, अब क्लियर है, सब नजर आ रहा है आपको? ओके नाउ नेक्स्ट, स्टार्ट नेक्स्ट वन। अब इतना देखें, अब प्लस का मैंने आपको एक बता दिया, सेकेंड इज 5x plus 2y, do yourself, right? because by doing the same pattern। अब a सपोज कर लेंगे आप 5x एंड b सपोज कर लेंगे 2y, only values are changed, otherwise by using the same formula or by the same method you will solve। अब मैं 3 is also same, पार्ट 1 2 एंड 3 सब आपके प्लस के हैं, ठीक है, एक ही मेथड यूज होगा। अब आप आ जाए नंबर 4 पर, नंबर 4 माइनस का है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट? तो x माइनस 1 अपॉन x, नंबर 4 नाउ आई एम गोइंग टू रेज, चल आई रेज क्विकली टेल, कर दूं मैं, जल्दी बताएं, गिव रिस्पॉन्स बेटा।
टीचर एक मिनट रुक जाए। जल्दी करेंगे, डोंट टॉक विद ईच अदर, क्विकली कॉपी डाउन इट। जोहेब, तहा, रेहान, मुकद्दस, सलीमा, फरहान, आशा, अली। ये हु इज अली? अलियान, हु इज अली? हु इज? मिस मैं हूँ। हाँ, हु इज मैं? मिस अहमद। हाँ, अहमद। आप नए नए नामों से आते हैं। नो मिस, वो मेरे भाई का लैपटॉप है ना, इस वजह से अच्छा, नाम आ गया। मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अटेंडेंस जब यू नाम से आ रहे हैं तो टीचर बहुत बड़े झूठे हैं। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? ये आपकी अटेंडेंस भी मार्क होती है ना। अबू अहमद। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। अब प्लस के हो गए, अब माइनस का कर रही हूं मैं। माइनस का है x माइनस 1/, यहां पर लिख रही हूं मैं क्योंकि वो जगह नहीं होती। सोल्यूशन मैं चाहती हूँ ज्यादा नीचे नहीं आऊं, मैं ऊपर ऊपर तक आपको एक्सप्लेन कर दूं, ऊपर की स्पेस। x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, ठीक है। अब होना सी, अब इसमें है क्यूब, तो फर्स्ट यू टू पुट क्यूब ओवर द एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यूब में कर लिया, अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें यहां से। बाय, अब कौन सा फार्मूला यूज होगा बताइए? विच फार्मूला विल बी यूज? बाय फार्मूला, फरहान टेल विच फार्मूला और एनी अदर? माइनस राइट, क्योंकि वी हैव माइनस साइन इन बिटवीन टू टर्म्स, सो a माइनस बी होल क्यूब। अब ये किसमें एक्सपेंड होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फार्मूला, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, वही सेम टर्म्स होंगी, ठीक है, सेम पावर, ओनली साइन विल बी चेंज। और साइन की पहचान क्या है? माइनस का है तो वी हैव 4 टर्म्स अगेन। फर्स्ट टर्म में प्लस होगा, सेकंड में माइनस, फिर फर्स्ट, फिर माइनस। टाइम इज शॉर्ट, रनिंग आउट ऑफ टाइम का इंडिकेशन इज कमिंग, नाउ एक्सपेंड इट। सपोज कर लें आप, वही ले लें आप, और अगर आप समझ गए तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओमिट दिस स्टेप, ठीक है। कि सपोज क्या है आपके पास? a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/x। अब जब फ्रैक्शन में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में और भी आसानी होती है कि इसमें कैंसिलेशन हो जाती है। जवेरिया इज ज्वाइनिंग लेट, वाई भाई जवेरिया लेट, कमर, ओके। लेट्स स्टार्ट, x माइनस 1/x होल क्यूब। नाउ देखें सी, होल क्यूब, फर्स्ट टर्म होल क्यूब, व्हाट इज a इज x, यहां पर x लिख लिया। फर्स्ट टर्म x, तो ये आपने x लिख ली, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, सेकंड टर्म पे 3a² एंड b, ठीक है। यहां पर a आ जाएगा, a इज सपोजिंग x and b is supposing 1/x 4, ठीक है, राइट। 3a² b, आगे बढ़े, प्लस 3ab², यहां we write x and here 1/x and fourth term is माइनस होल क्यूब, माइनस यहां पर आ जाएगा 1/x। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट। First you simplify, x whole cube means x cube, right? Minus, पहले आप इसे कर लें, 3x² multiply by 1/x, ये ब्रैकेट में लिख लें, doesn't matter, सेम यार। प्लस पहले आप स्क्वायर करें,
इसको एक्सपेंड करें सेम ईयर प्लस 3x देन यू विल कैंसिल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब नाउ सी एक्स क्यूब माइनस व्हाट लेफ्ट ये से सी है ये x और इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्रॉस कैंसिलेशन होती है व्हेनेवर यू हैव फ्रैक्शन ठीक है और भी आपकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है ये x इस x से कैंसिल हो गया तो व्हाट थिंग इज लेफ्ट 3x ठीक है मैं कैंसिलेशन शो नहीं कर रही आप कर दीजिएगा पेंसिल से तो फिर वो आप जो लेट स्टूडेंट देख रहे हैं उनको समझ भी नहीं आएगा कि टीचर ने कैंसिल क्यों किया है माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब या आप खुद कैंसिल कर दीजिए ये दे आर मल्टीप्लाइंग सो फ्रैक्शन में क्रॉस कैंसिलेशन इज हैपनिंग हियर नाउ सिमिलरली हियर ये x और इस x से कैंसिल हो जाएगा तो नाउ वी हैव 3 अपॉन x राइट एंड सेम वे 1 अपॉन x क्यूब कॉपी डाउन ये आपका आंसर हो गया very easy similarly you have to do other parts also okay understanding or not have you understood all of you बताइए टीचर हाँ ask एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें who is Halima is asking okay now beta we have minus sign between two terms ठीक है माइनस साइन है तो पहले तो आप पुट होल क्यूब ओवर क्योंकि हम क्यूब मालूम कर रहे हैं तो क्यूब तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो पहले तो आपका काम ही यही है कि क्यूब डालना है ठीक है अब लिखेंगे बाय फार्मूला माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला ये लिख लिया आपने नाउ यू सपोज दिस इज योर फर्स्ट टर्म एक्स तो आप इसे फार्मूला क्योंकि a माइनस बी में है तो आप सपोज कर लें a इज इक्वल टू जो गिवन टर्म्स है जो भी है व्हाटएवर इज गिवन x वो आपने x ले लिया सेकंड टर्म इज b तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन x ये आपने सपोज कर लिया नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यू पुट द वैल्यूज इन ब्रैकेट फॉर a क्यूब है तो वी आर सपोजिंग a एज x तो x a की विल बी रिप्लेस बाय x होल क्यूब हो गया -3 अब अदर स्टूडेंट स्टार्ट सेकंड वन क्योंकि टाइम इज शॉर्ट फिफ्थ कर लें स्टार्ट मुकद्दस आप फिफ्थ स्टार्ट कर लें अदर स्टूडेंट नाउ a विल बी रिप्लेस बाय अगेन x a स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा और b की बजाय 1 अपॉन x लिख लेंगे सेम हियर इन अदर ब्रैकेट्स नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई पहले आप इसको पावर अप्लाई कर दे इसके ऊपर 3x स्क्वायर x हम यूं कैंसिल अभी इस स्टेप पे नहीं कर सकते जब तक इसके ऊपर पावर ना अप्लाई कर दे ठीक है पावर अप्लाई कर दी सेम हियर 1 को तो छोड़ दे एनी पावर ऑफ 1 व्हिच विल बी 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x क्यूब अब देखें यहाँ पर x है वहां पर x स्क्वायर है तो ये अलग से करके मैं बता रही हूँ x स्क्वायर है और यहाँ पर x है तो ये x और इस x से कैंसिल हो गया तो एक x 1x इज लेफ्ट ठीक है सेम है यहाँ पर भी यही हुआ 3 ये आपके पास x है इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये x इससे कैंसिल हो गया तो नीचे आपके पास x आ गया 3 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ये मैंने रफ में अलग से करके आपको बता दिया अंडरस्टूड नाउ अलीमा नाउ यस टीचर पार्ट नंबर 5 पे आ जाए क्विकली और से कॉपी डाउन द सॉल्यूशन विद मी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है अच्छा नेक्स्ट इज नंबर 5 अगेन वी हैव फ्रैक्शन एक और फ्रैक्शन का बता दूं बाकी यू डू योरसेल्फ क्योंकि टाइम इज शॉर्ट ओनली 2 और 3 मिनट्स आर लेफ्ट तो एक ही पार्ट हो पाएगा 6 आप डू योरसेल्फ अच्छा वी आर नेक्स्ट क्लास वी हैव अगेन राइट so don't go away keep sitting and solve part number 6 part 5 हाँ नेक्स्ट क्लास भी होगी नेक्स्ट क्लास भी होगी डोंट गो अवे ओके ठीक है बस कीप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर whatever you have laptop or mobile or other pc ठीक है 3x minus 1 upon 3x minus 1 upon 3y right
अगेन ही है माइनस फार्मूला। अब वही लिख रहे हैं आप, पहले तो आप इसके ऊपर वो डालें, होल क्यूब कर लीजिए, मैं यहीं पर कर रही हूँ ताकि टाइम वो जगह सेव हो जाए। 3y होल क्यूब सेम उतारे बाय यूजिंग सेम फार्मूला, राइट। अब सपोज कर लें यहाँ पर, those who have understood, so don't write कि suppose this thing is this or this thing is this, you can do directly। यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। सपोज सी फर्स्ट टर्म इज 3x, तो a is equal to 3x and b is equal to 1 upon 3y। now start quickly। ये Arham is joining now, first time Arham is joining the class, ऑनलाइन क्लास, वेरी लेट। अब उनको क्या समझ में आएगा, ठीक है। नाउ सी 3x माइनस 1 अपॉन 3y होल क्यूब। नाउ क्या है आपके पास, होल क्यूब, तो a में a विल बी रिप्लेस बाय, किससे a रिप्लेस होगा, 3x से। सहा क्विकली गिव रिस्पॉन्स, लिखवाएं मुझे 3x। यहाँ पर क्या लिखूं, 3x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3y। अच्छा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये जो ब्रैकेट की लिमिट है टिल टू नेक्स्ट लाइन पूरे नीचे तक जाएगी आपकी, डिनोटिल डिनोमिनेटर प्लस 3, a is 3x and b is 1 upon 3y whole square minus 1 upon 3y whole cube। now expand it, quickly expand करें। क्यूब ऑफ 3, इसको करें क्यूब ऑफ दिस, 3 टाइम्स करेंगे 27, अभी किया है हमने, एक्स क्यूब किसी को पार्ट में, ठीक है। माइनस पहले एक्सपेंड इट देन कैंसिल, पहले करना है आपने एक्सपेंड। स्क्वायर ऑफ 3 9 और एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 3y ब्रैकेट क्लोज। और ये अगेन टेलिंग यू ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट जो है टिल टू द नेक्स्ट स्टेप, ये आप लोग सिर्फ यहां तक करके छोड़ देते हैं। 3x और इसका होल स्क्वायर करें 1 अपॉन 9y स्क्वायर, छोटे छोटे नंबर है, यू कैन डू इट। 27y क्यूब, राइट। नाउ सी 3x माइनस, किसी वक्त भी हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो डोंट गो अवे, वी